یہ کسی کی بدنامی نہیں ہے, یہ ملک کی بدنامی ہے. ان کی سائڈ سے آنسو گیس آ رہی ہے اور ساتھ وہ پنکھے لگا رہے ہیں تو کہ ہوا ساری ادھر کو جائے. 4 شہادتیں ہوئی ہیں, 3 رینجرز کی, 1 پنجاب پولیس کے جوان کی, 2 رینجرز والے کریٹیکل ہیں, 4 ہمارے ادھر اسلام آباد والے کریٹیکل ہیں. ہمارے اے ایس پی کل 2 زخمی ہوئے ہیں, ایس پی بیچارہ ایک شدید زخمی ہے. ہم کسی بھی صورت میں جانی نقصان نہیں چاہتے ہیں اور تھے. مین قافلہ وہی ہے, آیا سارا کے پی کے سے ہے. ہر بندہ اس ٹائم پنجاب سے آپ کو ایک بندہ بھی ہارڈلی نہیں نظر آئے گا. فساد کی جڑ صرف وہ ایک خفیات ہے, ٹھیک ہے, ان کی لیڈرشپ بات بھی کرنا چاہتی تھی. وہ ایک چیز جو ہے نا وہ سب پہ بھاری ہے, اس نے مجھے نہیں پتا پارٹی کو کب ٹیک اوور کرنا ہے. بشرا بی بی یہ پلان کر کے آئی ہے کہ ہم نے لاشیں گروانی ہیں, خون خرابے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. جب بھی کسی دوست ملک کا دورہ ہوتا ہے تب ان کو دھرنا کیوں یاد آتا ہے؟ یہ ملک دشمن ہے, ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ریاستوں کا جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے پروگرام پبلک اوپینین اور میں ہوں آپ کے ساتھ زریاب عرفان. ناظرین, راستوں کی بندش, کارکنان کی پکڑ دھکڑ, لاٹھی چارج, آنسو گیس کی شیلنگ, راستوں کی رکاوٹ سمیت حکومت نے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے جتنے بھی اہتمام کیے تھے سب ضائع ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کے قافلے ڈی چوک کے ارد گرد ڈیرے ڈال چکے ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے ڈی چوک پہنچنے کے مناظر بھی عجیب تھے. مظاہرین نے ڈی چوک میں پڑے کنٹینرز کو کنٹرول سنبھالا اور پھر وہاں پر موجود رینجرز اہلکاروں کو گلے لگایا اور سیلفیاں بنائی. یہ مناظر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ مظاہرین اپنی فورسز سے محبت کرتے ہیں اور کسی صورت ان کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہیں. دوسری جانب رینجرز اہلکاروں کا رویہ بھی قابل دید تھا. اہلکار مسلسل لاؤڈ سپیکر پر یہ بیانات دیتے رہے کہ مظاہرین پرامن رہیں, احتجاج ان کا حق ہے اور اگر وہ پرامن رہتے ہیں تو ان پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کی جائے گی. اب جب پی ٹی آئی لاؤ لشکر کے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے تو اس صورتحال میں وزیر داخلہ کچھ مرجھائے سے نظر آئے. انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کے احتجاج کی کامیابی کو کسی خفیہ ہاتھ کا ایجنڈا قرار دینے کی کوشش کی. انہوں نے معنی خیز انداز میں پی ٹی آئی کی سیاسی لیڈرشپ کو کلین چٹ دی لیکن اپنی توپوں کا رخ ایک خاص طرف کر دیا. انہوں نے کہا کہ فساد کی جڑ صرف ایک خفیہ ہاتھ ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خون خرابہ نہیں چاہتی بلکہ مذاکرات چاہتی تھی, مگر وہ خفیہ ہاتھ سب پر بھاری ہے. مجھے نہیں پتا اس نے پارٹی کو کب ٹیک اوور کرنا ہے, اس کے ارادے کچھ اور ہیں. بظاہر محسن نقوی کا نشانہ بشرا بی بی ہی تھی. بہرحال پی ٹی آئی ہزاروں کے مجمع کے ساتھ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے اور دھرنے کے لیے تیار ہے. اب یہ حکومت کا امتحان ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اس دھرنے سے باز رکھنے کے لیے کیا آفر کرتی ہے. بانی تحریک انصاف کی دیے گئے 3 عقائد پر بات ہوتی ہے یا پھر دوبارہ سے ایک نیا تصادم جنم لیتا ہے. آج کی پبلک اوپینین میں پی ٹی آئی کے دھرنے, حکومت کی حکمت عملی اور اگلا ممکنہ لاہ عمل یا منظرنامہ کیا ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار رضوان رضی صاحب, عمران یعقوب صاحب اور انور رضا صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے. تاہم ان سب سے پہلے آپ سب کی اجازت سے سابق سینئر وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون کال پر, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت کا. سر جی, سب سے پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ مذاکرات, بات چیت, میل ملاقاتیں سب رائے گاہ ہو گئی اور بشرا بی بی اور علی مین گنڈاپور صاحب کا جو قافلہ ہے وہ اس وقت ڈی چوک میں موجود ہے ہزاروں کے مجمع کے ساتھ. آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ آنے والے گھنٹوں میں کیا سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ذریعہ آپ جو راؤنڈ 1 ہے وہ تو ڈیفینیٹلی بشرا بی بی جیت گئی ہیں اور پی ٹی آئی جیت گئی ہے, کیونکہ جو بیانات تھے یا گفتگو تھی وہ تو یہی تھی نا کہ ہم اٹک کے آگے نہیں آنے دیں گے. اب اٹک سے آگے گیا وہ تو ڈی چوک ہی پہنچ گئے ہیں اور اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بڑا مجمع ہے. نمبر تو ہر بندہ ظاہر اپنا بتاتا رہے گا بٹ بہت بڑا, کافی بڑا مجمع ہے. اب دیکھیں نا یہاں پہ 2 ہی سچویشنز ہیں, یا تو نیگوسیشنز ہوں گی اور یا آپریشن ہوگا. اب آپریشن میں پرابلم یہ ہے کہ یہ عام طور پہ جو اب سے پہلے یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کا اگر آپ 25 نومبر کو دیکھیں یا اس کے بعد دیکھیں تو ہمیشہ یہ تھا کہ انہوں نے جو مجمع ہے وہ جمع نہیں ہونے دیا اور اس کو پہلے ڈسپرس کیا. اب پہلی بار یہ ہوا کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا. اب آپ سارے بھی اور ہم بھی جو اپنی پولیس کے یا رینجرز میں جو ان کے کیپیسٹی ہے یا جو ان کے پاس ایکوپمنٹ ہے اس کا پتہ ہے ہمیں. اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی آپریشن وغیرہ کرنے کی اس طرح کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ اچھا. لیکن فواد چودھری صاحب اس وقت جو میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں اور میں آپ کا بھی اس پہ چاہوں گی کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات موجود ہیں کیونکہ آپ بھی خاصی تجربہ کار ایک سیاستدان ہیں, کہا جا رہا ہے کہ رات گئی کسی پہر میں ایک آپریشن ہو سکتا ہے
है क्लियरेंस ऑपरेशन हो सकता है पीटीआई कारकुनान के खिलाफ, अगर ऐसा होता है तो उस वक्त सिचुएशन क्या होगी? देखो ना, उसमें इशू यही है ना कि देखिए, अगर तो ऑपरेशन हो और उसमें अनफॉर्चुनेटली जो है कैजुअलिटीज हो या कुछ नुकसान हो, तो फिर ये देखे ना, ये जो मामला है ये तो बहुत खराब हो जाएगा। अभी भी खैर निगोशिएशन भी खत्म नहीं हुई, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी भी एक मीटिंग जो है वो चल रही है। रात को भी वैसे काफी करीब था काम, बट समहाउ वो नहीं, उसके ऊपर वो बात जो है वो आगे चल पड़ी। डिस्ट्रस्ट ज्यादा है, वरना बात जो होने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो अब भी यही जाहिर है कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि आपको निगोशिएशन ही करनी है, कुछ लेके कुछ दे के, कुछ पीटीआई कुछ पीछे हटेगी, कुछ हुकूमत। देखें, ये कहना कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपने रिलीफ देना है, आप देखें इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो यास्मीन राशिद है वो 80 साल की खातून है, कैंसर सर्वाइवर है, उनको छोड़ने में नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। इजाज चौधरी साहब जो है 2 बाईपास उनके, 70 साल के आदमी है, महमूद रशीद, उमर चीमा और खुद इमरान खान जो है, आपको पता है उनके खिलाफ केसेस बिल्कुल ना कोई सर है ना पैर है, तो इसलिए उनको डेफिनेटली आपको रिलीफ जो है वो देनी चाहिए। अच्छा चलिए, इनको रिलीफ के हवाले से तो बातचीत तभी होगी ना फवाद चौधरी साहब, जब कुछ लोग मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने पर आमादा होते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा, आज मोहसिन नकवी ने खुफिया हाथ का तस्करा किया, जाहिर सी बात है उनकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा था कि लीडरशिप कुछ और चाह रही है, लेकिन बुशरा बीबी कुछ और चाहती हैं। मुमकिन आने वाले दिनों में आपको ऐसे लग रहा है कि बुशरा बीबी पार्टी को टेक ओवर कर लेंगी या वो कर चुकी हैं? पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा ना कि लोग जब बैठेंगे तो बात होगी, तो लोग तो बैठे ही हुए हैं। अच्छा, तो आप देखना ये है कि वो लोग उठते हैं तो क्या जो है उसमें आता है। तो उसके बाद ये देखिए, बुशरा बीबी की भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो तारीख है उसमें उनका रोल वैसा ही है जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की फैमिली ने अदा किया था, जैसे नुसरत भुट्टो ने अदा किया था, या कलसूम नवाज शरीफ ने अदा किया था। तो ये जब तहरीक तो उनके अगर खावन की रिहाई की तहरीक है, तो उसको अगर बुशरा बीबी लीड नहीं करेंगी तो कौन करेगा? और मैं तो बड़े हफ्तों से ये बात कह रहा था कि उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि जब वो फैमिली आगे आती है तो लोग जुड़ते हैं। और आप इसीलिए देख रही हैं कि आज की जो इज्तिमा है उसका जो रंग और ढंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसमें कोई शक नहीं कि उसका सेहरा बुशरा बीबी के सर जाता है। लेकिन सर, आज उनकी ना मैंने एक खिताब सुना, वो अलग बात है कि मीडिया पर तो रिपोर्ट नहीं हुआ, सोशल मीडिया के थ्रू ही हम लोग की सारी जानकारी ले रहे थे। उन्होंने कहा कि खान साहब एक शाहीन है और जो गिद्ध थे वो उनका साथ छोड़कर चले गए। आपको मालूम है उनका इशारा किस तरफ था, वो किसकी बात कर रही थी? ये लोगों की कर रही होंगी, बेशुमार लोगों ने जिन्होंने धोखा दिया है, जो उन्होंने साथ छोड़ा है, वो उनकी डेफिनेटली उनकी तरफ बात कर रही होंगी। फिर अभी भी पार्टी में ये प्रॉब्लम है कि देखिए ना, अभी पंजाब से अनलॉक नहीं हुआ, अभी सिर्फ केपी जो है, केपी में एडवांटेज भी कुछ है कि हुकूमत है और वो सख्तियां और वो वहाँ पे तबाही नहीं हुई जो पंजाब में या इस्लामाबाद के लोगों ने बर्दाश्त की है। तो सर, पंजाब के लोग ये तप्पड़ नहीं रखते कि वो लोग भी निकलते बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि केपी के लोग निकले? केपी के लोग तो हुकूमत है तो निकल आए ना। देखिए ना, उनमें ये एडवांटेज जो आप माने ना, पंजाब में तो यही हो रहा है ना कि पंजाब में तो लोगों को इकट्ठा नहीं, पंजाब में लीडरशिप तो सारी काडर जो है वो तो तबाह कर दिया है ना। अब उसके बाद जो सारी लीडरशिप है वो या जेलों में है या जो है वो है नहीं, और लीडरशिप तो इशू नहीं है इस वक्त। और अगर 24 घंटे इस हुकूमत की घबराहट इस वक्त क्या है, हुकूमत का प्रॉब्लम इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि अगर 24 घंटे ये सिचुएशन रहती है तो आप देखिए, इस्लामाबाद रावलपिंडी की 50 लाख की आबादी है, यहाँ से 25, 30, 40 हजार बंदा अगर निकल रहा है। फैसलाबाद, लाहौर, ये 7, 7.5 करोड़ की आबादी के शहर है, और यहाँ से अगर ये इलाके जो हैं ये अनलॉक हो जाते हैं तो फिर तो देखें ना, फिर तो जो इमरान खान लेकिन बड़ी माजरत के साथ फवाद चौधरी साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही, आपने कहा ना, मैं मानती हूँ कि पंजाब में बड़ा बेहतरीन किस्म का क्रैकडाउन हुकूमत की तरफ से किया गया, उन्होंने पूरी जोरदार तरीके से लोगों को जो है ना वो रोके रखा। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जो ट्विटर पर तो हमें नजर आए लेकिन हमें मंजर-ए-आम पर नजर नहीं आए, और फिर हमने देखा कि कारकुनान हमें जेलों में नजर आए लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ट्वीट्स करते हुए नजर आए। मैं बड़ा खुलकर कहूंगी कि हमाद अरशद साहब जो बड़ा सरप्राइज देने वाले थे, सर उन्होंने तो अपनी एब्सेंस से सरप्राइज कर दिया हमें। नहीं, आ जाएंगे ये सारे, जरा 24 घंटे और इंतजार करें, ये सारे लोग निकल आएंगे। पंजाब में असल इम्पोर्टेंट इज़हार है लीडरशिप की, तो एक इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है। अब सच्ची बात यह है कि जब इमरान खान है और लोग हैं, निकलना तो लोगों ने है ना। ये लोग तो बता ही सकते हैं कि फलानी जगह पहुंचना है, पता ही है डी चौक पहुंचना है। मेरा ये ख्याल है कि इस हुकूमत ने अगर आज ये निगोशिएशंस नहीं होती और
दो सूरतें हैं, अगर ऑपरेशन ये करते हैं और वो नाकाम हो गया और या नेगोशिएशंस नाकाम हो गई तो आपको 24 आपका घंटे सियासी में तजुर्बा पंजाब- क्या कह रहा है? लास्टली आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो ऑपरेशन होगा किसके लिए सूटेबल होगा, पीटीआई वालों के लिए या हुकूमत के लिए? इस वक्त आपको आगे बढ़कर मतलब कहां पे लग रहा है कि ये पार्टी जीत सकती है अगर ऑपरेशन हो जाता है तो? हुकूमत तो फारग हो जाएगी, हुकूमत तो फिर नहीं रह सकेगी। अगर नुकसान हो गया हुकूमत तो फिर बदलनी पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट ने पहले ही इनका इतना बोझ उठाया हुआ है सर के ऊपर। एक ये जो जरदारी साहब या नवाज शरीफ तो सियासी लाशें हैं ना जिनको लेके ये फिर रहे हैं, तो अब इससे ज्यादा बोझ नहीं इनका ये उठा सकते। तो अगर ये ऑपरेशन, जिसने भी फैसला किया, ऑपरेशन होता है, नाकाम होता है, तो ये हुकूमत तो जाएगी। अब उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए हमें तो चाहिए तहम्मुल की बात मुजाहरा करें। हुकूमत को तहम्मुल का थोड़ा ज्यादा मुजाहरा करना होता है क्योंकि देना तो उन्होंने है ना। अपोजिशन जिस तरह आज भी खान साहब को देखें 2 दिन बिल्कुल उस तरह से कैद तनाई में रखा गया, उनको ब्लैकमेल, वो नहीं हो रहे। 2000 से देखें आप नहीं उनको कर सकते, आपको उनके लेवल के ऊपर आके उनकी ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है, करना मतलब तहम्मुल का मुजाहरा हुकूमत को दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत भारी तादाद में वहां पर पीटीआई के मौजूद हैं। और वाकई अगर इस वक्त हम सिचुएशन देखें तो पीटीआई के पास अब इस वक्त गंवाने के लिए तो कुछ है ही नहीं कि जिसके डर या जिसके खौफ के खातिर वो बैठे हों कि अगर ये भी ना हुआ तो शायद ये भी चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सीनियर वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। बैक टू बैक जरा मैं इनकी तरफ बढ़ती हूं। इमरान याकूब साहब, जो आपने बातें सुनी जरा फवाद चौधरी साहब की भी, और कल से लेकर अब तक जो हम लोग मंजरनामा देख रहे हैं, डी चौक के करीब करीब मौजूद हैं, एक तरीके से कहा जाए तो डी चौक पहुंच चुके हैं। क्या सिचुएशन आपको बनती हुई नजर आ रही है? आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? क्योंकि हम तो जो तज्जिया कर रहे हैं कहीं ना कहीं शायद आप अग्री करेंगे सर, मामलात उससे बरक्स ही दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि 2-3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी अहम है। एक वही बात जो आपने अपने इंट्रो में भी की और फवाद चौधरी साहब से भी पूछा कि जिसका जिक्र वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बार बार कर रहे थे, खुफियात। वो खुफियात क्या हैं? लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उनका इशारा बुशरा बीबी की तरफ था या इस्टेब्लिशमेंट में कोई इस तरह का खुफिया हाथ है कि जो वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। एक सवाल ये यहाँ पैदा होता है क्योंकि इस तरह से उनका आना और फिर उनको इस तरह से आने देना और फिर उनका डी चौक में पहुंचना, ये सारी चीज़ें भी हैं। ये भी बड़े सवाल गौर तलब हैं कि क्या वाकई ही उस तरह से रोका गया पीटीआई के लोगों को जिस तरह से हुकूमत पोर्ट्रे कर रही थी? क्या उस इतनी बड़ी नफरी में जब लोग मौजूद हो, इतनी बड़ी भारी तादाद में मौजूद हो, तो आपको लगता है कि वहाँ पर टेलीएट करना थोड़ा सा तो डिफरेंट था ना? कटी पहाड़ी पर भी जो कुछ हुआ हमने देखा। देखे 2-3 चीज़ें हैं। एक पहली बात ये कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं, देखे मॉब, मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि जब 10,000 या इससे ज़्यादा बंदा हो जाए ना तो फिर आप उसको जो मर्जी कह देंगे। जो हमेशा हम सुनते हैं ना कि लाखों का मजमा, वो 10,000 बंदा भी हो तो लाखों का मजमा बन जाता है। मिलियन मार्च कभी भी पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कि हकीकत में कितने मिलियन मार्च हुए हैं? 50,000 बंदा हो जाए तो कहते हैं मिलियन मार्च हो गया। लिहाजा ये सारी चीजें आप मॉब को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, ये एक टफ टास्क होगा पीटीआई के लिए। फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे थे उनकी बात से मैं बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप नहीं है, इमरान खान है और आवाम है। अब बुशरा बीबी को आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा 1001 इख्तलाफ के बावजूद कि चाहे ये साबित करती रही, कहती रही कि मैं गैर सियासी हूँ, गैर सियासी हूँ, लेकिन असल सियासत पीटीआई में अगर किसी ने की है और वो कामयाब भी हुई है तो वो बुशरा बीबी है। उन्होंने अलीमा खान को, हमाद अजहर तो खैर किसी नंबर में ही नहीं आते, जितनी उनकी टॉप लीडरशिप थी उन सब को। अच्छा, लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ है क्योंकि मैं खुद भी एक बीवी हूँ, मैं एक औरत हूँ। अगर कोई औरत अपने हस्बैंड की सपोर्ट के लिए बाहर निकलती है, फिर अगर वो किसी परेशानी से या किसी मुश्किलात से दो चार है और अगर हम उसकी मदद को आगे बढ़ते हैं तो रिजवान नज़ीर साहब वाकई हम इसे फिर ये कहेंगे कि ये सियासत में आना हो गया? क्योंकि हमने नुसरत भुट्टो साहिबा को भी देखा, मरहूम को, हमने मरहूम बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को भी देखा। मतलब मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेना चाह रही हूँ इस पर। देखिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू देने से पहले मैं ये अर्ज कर दूं, कल मेरे कुछ दोस्त फैसलाबाद में थे, उन्होंने कॉल किया हमारे प्रोग्राम के बाद और उन्होंने कहा कि ये हमारी बात जो है वो आप ज़रूर कहिएगा प्रोग्राम में। ये चनियोटी शेख बरादरी से हैं इमरान भाई, और वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पहुंचना था वो तो पहुंच गए हैं। ठीक है, हमारा आपने रास्ता बंद किया हुआ है, हमारे कंटेनर रास्ते में रोके हुए हैं और हमारा जो सर्कल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिनको आपने रोकना था वो तो रुके वो तो पहुंच गए। तो हमें तो खोल देना, खुदा का खौफ करें। करोड़ों का माल, करोड़ों का, अरबों का सर, अरबों का सर्कल उनका रुका हुआ है। वो कह रहे हैं जी हम 3 रोज से फैसलाबाद शादी पे आए हुए और यहाँ पे आके वो रुखसती भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब हम यहाँ पे फंस के बैठे। तो मैंने कहा जी मैं जरूर आपके लिए आवाज बुलंद करूंगा। देखिए, बात ये है
کہ دونوں فریقین جو ہیں حکومت اور پی ٹی آئی وہ ایک ایک کامیابی کے کلیمنٹ ہیں۔ پی ٹی آئی نے کہا، حکومت نے کہا جی ہم پی ٹی آئی کو نہیں آنے دیں گے، پی ٹی آئی آ گئی۔ کل میں اس پروگرام میں کہہ کے اٹھا تھا کہ جتنی لوگوں کی تعداد ہے یہ کسی بھی لا انفورسنگ ایجنسی سے نہیں روک پائے گا، بالکل آپ نے یہ کہا جی، اور نہیں رک پائے گا اور نہیں رک پائے۔ اب اس کے لیے جواز ہیں دونوں اطراف کے پاس، اس کے مختلف قسم کے۔ حکومت کے پاس ہے جی، ان کے پاس ممنوعہ بور کا اسلحہ ہے اور لانگ رینج کا ہے اور لیزر ہیں اور وہ ہمارا زیادہ نقصان کرتے اگر ہم ان کے اوپر فائرنگ کرتے، یہ حکومت کا جواز ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اس کا کوئی اور جواز ہوگا، لیکن پی ٹی آئی ڈی چوک کے اندر پہنچی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جب اس پروگرام میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تک پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈی چوک سے پیچھے ہٹ کے وہ جو کلثوم پلازا ہے اور جس کی سائیڈ پیچھے وہ جو ہاسپٹل ہے پولی کلینک جو ہے وہاں پہ ہیں، اور تھوڑی سی آنکھ مچولی چل رہی ہے اس وقت رینجرز کے ساتھ، پولیس نہیں ہے، رینجرز کے ساتھ آنکھ مچولی چل رہی ہے۔ تو حکومت کلیم کر سکتی ہے کہ ہم نے ڈی چوک نہیں بیٹھنے دیا جی، ان کو آئے اور تقریر کر کے چلے گئے، اور یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں پہ پہنچے۔ دو میٹنگیں ہوئی ہیں جی، ایک میٹنگ کا احوال تو یہ بتا گئے ہیں فواد چودھری صاحب کہ جو اس وقت جاری ہے، اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور وہ بھی کسی فریق کی آپس کی میٹنگ تھی، اس کے اندر سے بھی کچھ باتیں آئی ہیں، اب اس سے ہدایات لے کے ایک اور میٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک بات کہی گئی یہاں پہ تصریح کے ساتھ میں اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں، حکومت اس وقت ٹائم بائی کر رہی ہے ٹل نائٹ جو رات کے آپریشن کے بارے میں، یا بیلاروس کے صدر نے جو جانا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، دس از آؤٹ آف کوسچن۔ اچھا، حکومت ٹائم بائی کر رہی ہے، بیلاروس کا صدر کا کل 11 بجے ڈپارچر ہے، ٹھیک ہے، اور 29 کو ان کا ڈیلیگیشن واپس جائے گا جو ان سے ایک دن پہلے آیا تھا۔ اس کی کل اور پرسوں چیمبر اور لاہور اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ کچھ میٹنگز ہیں، بزنس مین کے ساتھ کچھ میٹنگ ہیں، کچھ فیڈریشن ہاؤس کے اندر میٹنگز ہیں، وہ اٹینڈ کرنے کے بعد 29 کو جائے گا۔ ٹھیک، حکومت کی خواہش ہے کہ 29 آ جائے۔ تجزیہ بھی دے دیا کہ یہ کب تک کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا بڑا سافٹلی ایک اپنا کنڈکٹ دکھا رہے ہیں۔ انور رضا صاحب، ہم لوگ پروگرام کے آغاز سے پہلے ذرا کراس ٹاک کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ رضوان رضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت ٹائم بائی کر رہی ہے، آپ کی اپنی خبر کیا ہے یہ بھی مجھے بتا دیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو بھی کہا نا کہ ابھی فی الحال رینجرز اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے درمیان چھوٹی موٹی ہم یوں کہہ لیں کہ جھڑپیں جاری ہیں، سر ان آنکھوں نے آج ایک منظر دیکھا جس سے میں تو بہت زیادہ سراہوں گی، اور شاید یہ آنکھیں دیکھنے کو بہتاب تھیں کہ جس طرح سے کارکنان کنٹینر پر چڑھے اور وہاں پر رینجرز کے اہلکار موجود تھے، دونوں نے مسافہ بھی کیا، اور کچھ لوگوں کو تھپکی بھی ملی رینجرز اہلکاروں کی طرف سے، اور پھر رینجرز اہلکاروں کا لاؤڈ سپیکر میں یہ کہنا کہ آپ لوگ پرامن رہیں، پرامن رہ کر احتجاج کریں، ہم آپ کو گولی نہیں ماریں گے۔ بحیثیت محب وطن پاکستانی آپ کو یہ مناظر کیسے لگے؟ بہت شکریہ زریاب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا اچھا لگا کہ میں نے رینجرز کو اور جب عوام کو گھلتے ملتے دیکھا، گلے ملتے ہوئے دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جب رضی صاحب کہہ رہے تھے تو رینجرز سے پہلے پولیس وہاں پر موجود ہے، اور جو شارٹ گنز ہیں اور جو ربر کی گولیاں ہیں اور جو شیلنگ فائر کی جا رہی ہے وہ رینجرز کی جانب سے نہیں بلکہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا یہ کہ سچویشن، چونکہ جو ڈی چوک ہے، ڈی چوک کے بعد جو جگہ ہے وہ ہے چائنا چوک، جہاں پر اس وقت کارکنان اور پولیس کے درمیان شیلنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 7th ایونیو آتا ہے جہاں پر علی بن گنڈا پور اور اس وقت بشرا بی بی موجود ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں کل بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ انٹرنل ارینجمنٹ کیا جا رہا تھا جس کو سنگجانی کا نام دیا گیا کہ وہاں پر آپ جلسہ کر لیجئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت اس بات پر متفق تھی، نہیں متفق تھے تو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جو بالکل سیم پیج پر ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کی ہدایت پر ہی سب کچھ کر رہی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح 26 نمبر چنگی سے ڈی چوک یہ لوگ پہنچے، اور اس دوران کیا کچھ ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ خیر، دونوں جانب جہاں بھی شہادتیں ہوئی ہمیں اس بات کا افسوس ہے کیونکہ ہم محب وطن ہیں اور یہ چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑھے، ترقی کرے۔ لیکن اس طرح یہ بھی بتاؤں کہ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ رات گئے کوئی لوگوں کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اریسٹ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ چائنا چوک پر، ڈی چوک پر موجود چند لوگ ہوں گے، چند کارکنان ہوں گے، ڈیفینیٹلی وہاں یہاں پر ان کے عزیز و اقارب بھی ہیں، وہ ڈسپرس ہوں گے۔ لیکن اب جو سچویشن ہے، مارکیٹیں جو ہیں قرب و جوار بند کروائی جا رہی ہیں، ہاں جی ہاں جی، وہ آف کر دی گئی ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، مذاکرات اپنی جگہ پر، میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ مذاکرات صرف سٹ ان ہونے کے لیے کسی ایک مقام کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، وہ پشاور موڑ بھی ہو سکتا تھا، لیکن بشرا بی بی کی جو مستقل مزاجی ہے اور کارکنان نے از خود جو فیصلہ کیا ہے اس کے
डी चौक पर पहुंचे, वरना अली अमीन गंडापुर ने बड़े कोशिश की रस्ते तोड़ाने की कि किसी ना किसी तरीके से वो मॉब से निकलें और बातचीत करें। और लेकिन ये वही पैटर्न है अनवर साहब जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि जितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, अब अली अमीन गंडापुर या कोई और उन्हें जो है वो नहीं बता सकता कि आपने क्या करना है, ये काफिला डिसाइड करेगा कि अब अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। एनीवेज एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है अनवर साहब, ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जब वापस आते तो बुशरा बीबी ने आज खिताब किया कारकुनान से, चंद चीदा नकात हैं उस खिताब के, मैं चाहूंगी कि उसके ऊपर आगे डिटेल हम लोग डिस्कशन करें। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि जब मैं वापस आऊंगी तो बुशरा बीबी की एक जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने रखूंगी, जिस पर हम तफसीली तज्जिया भी करेंगे। तकरीबन कुछ 3:30 पौने 4 बजे की ये बात है कि जिस वक्त बुशरा बीबी अपने कारकुनान से मुखातिब हुई डी चौक के करीब पहुंचकर, और उन्होंने कहा कि मेरा आपसे वादा है कि खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी, चाहे मैं वो आखिरी औरत हूं, मैं यहीं पर रुकूंगी। और दूसरा ये कि अगर आपको कोई आकर ये कहे कि बीबी चली गई हैं तो वो झूठ होगा, आपने किसी की बात पर यकीन नहीं करना। इसके साथ साथ मेरा वो सवाल जो कि मैंने फवाद चौधरी साहब से किया तो उन्होंने कहा कि खान एक शाहीन है और उनको छोड़कर जाने वाले गिद्ध हैं। तो अब हमें पता चल चुका है कि वो कौन से सियासी गिद्ध थे जो कि उनके साथ मौजूद थे। जरा तज्जिया ले लेते हैं बुशरा बीबी की स्टेटमेंट पर। मेरा आपसे वादा है अकेली नहीं जाऊंगी और खान को लेकर ही जाऊंगी, पहुंच तो वो गई। आपको लगता है कि खान साहब की वापसी के साथ ही मामला टलेगा? देखिए पहले तो ये बताएं कि आपने ये कहाँ पे सुना? सर एक सोशल मीडिया की वेबसाइट है जहां पर 24 आवर्स रिपोर्टिंग हो रही है इस प्रोटेस्ट को, डिफरेंट और वेबसाइट्स पर। अब देखें ना, किसी चीज़ की तस्दीक, रिजवान रज़ी साहब इतने सीनियर आदमी है बैठे हैं, रज़ी साहब हमारे पास तस्दीक के क्या ज़राए होते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मीडिया पे कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हो रही और आपको सिर्फ डिपेंड ही सोशल मीडिया पे करना पड़ रहा है, और आप एक तरफ कहते हैं कि सोशल मीडिया पे सब कुछ फेक है, तो आप किस पे यकीन करें? क्या ये ठीक है? जिस तरह से फिर पुरानी वीडियोस को बार बार नए, वो कहते हैं पुरानी बोतल में नई शराब, तो वो उस तरह से करेंगे तो फिर आवाम को आप खुद कंफ्यूज करते हैं। दूसरी बात अब आ जाते हैं असल मुद्दे पे कि जो आपने बुशरा बीबी की बात की, देखें बुशरा बीबी ने वहाँ पे वादा उनसे भी लिया कि आप भी मुझसे वादा करें कि इमरान की रिहाई के बगैर, खान के बगैर हम यहाँ से डी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बुशरा बीबी ने, अगर आप पीटीआई के अदसे से देखें तो उन्होंने तो बहुत अच्छी इनिंग खेल ली है। उन्होंने तो अपना जो शो करना था वो कर लिया। उन्होंने जो अपनी पोजीशन गेन करनी थी सियासी तौर पे वो भी कर ली है। मैं आपकी उस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ जो अभी आप कर रही थी कि मैं भी एक बीवी हूँ। बिल्कुल आप भी एक बीवी हैं, एक बहन हैं, सब कुछ है, लेकिन एक घरेलू खातून में बहरहाल, और एक सियासी, देखिए जितने भी सियासी कारकुन होते हैं वो भी कभी आम शहरी होते हैं, लेकिन उसके बाद हालात की वजह से सर हम ये कह सकते हैं कि बेगम कुलसूम नवाज, बेगम नुसरत भुट्टो, वो भी एक लम्हे के लिए या कुछ टाइम के लिए उन्होंने भी सियासी लिबास। आपका सवाल ही गलत है। नुसरत भुट्टो तो सीनियर मिनिस्टर रही हैं, आप उन्हें कह रही हैं कि वो घरेलू खातून। नहीं, मैंने घरेलू खातून नहीं कहा, मैंने ये कहा कि कोई भी औरत जब भी बाहर निकलती है तो हम उसको ये कहते हैं कि फिर वो घरेलू नहीं रही, वो सियासी हो गई। नहीं, उन्होंने क्लेम नहीं ना किया। सॉरी, ठीक है, गुजारिश ये है कि आप ये तो देखें ना कि उसका रोल, अगर एक खातून सियासी पार्टी की मीटिंग्स चेयर कर रही हैं, उनको खिताब कर रही हैं, उनको ये कह रही हैं कि खबरदार उसको टिकट नहीं मिलेगा जो इतना बंदे ना लाया, तो फिर भी आप अगर ये कहें कि वो गैर सियासी खातून है, यानी वो तो पूरा एक अरेंज कर रही हैं। ठीक है, चले इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। ये जो अभी कहा ना कि टिकट नहीं मिलेगा, वाकई ये अल्फाज उनके हैं। रिजवान रज़ी साहब, उन्होंने आज सियासी गिद्धों का भी जिक्र किया जी, किसकी तरफ इशारा कर रही थी, किसकी बातें हो रही थी? देखिए आप बहुत शरीर एंकर हैं, यानी आपने ये सवाल फवाद चौधरी साहब से किया, और फवाद चौधरी साहब वो साहब है जो छोड़ के जाने वालों में शामिल है। इसलिए मैं आपकी ये वाली शरारत, और ये चुटकी भरनी चाहिए एंकर को, उसे प्रोग्राम के अंदर कलर ऐड करने के लिए ये करना चाहिए। और मैं लेकिन उन्होंने बड़ा तहम्मुल मिजाजी और कमाल खूबसूरती के साथ, मैं आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट फवाद चौधरी साहब कि उन्होंने इस सवाल के ऊपर जरा बराबर भी किसी को एहसास नहीं होने दिया
کہ ज़रियाब ने उनको कहाँ पे चोट लगाने की कोशिश की है। एनी हाउ देखिए, ये ज़ाहिर है उन लोगों की तरफ है इशारा जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने के नतीजे के अंदर अमान मिल गई और रिहाइयां मिल गई। तारीखें वो अभी भी भुगत रहे हैं। मैं अपनी तारीख भुगतने जाता हूं तो उसमें 2-4 आए होते हैं मेरे साथ, उसी अदालत में खड़े होते हैं। तो वो उनको अमान मिल गई और एक सियासी जमात के अंदर उनको शामिल भी कर दिया गया। अब दिल तो उनका बहुत करता है कि वो वापस आ जाएं, लेकिन पहली तो बात ये है कि पीटीआई में उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, और दूसरा ये है कि अब जब वो वक्त गुजर गया, वो जगह लेकिन आप जैसे मेरे बड़े ही कहते रहे कि ज़रियाब सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं होता। हो सकता है कल को कोई और चीज जौहरी तब्दीली आ जाए, लेकिन फिलहाल एक मैंने जो बात सुनी है वो ये है कि वहां पे जब ये खिताब हो गया तो उस वक्त मोहतरमा का ख्याल ये था कि हम डी चौक से आगे जाएं। अच्छा। और बाकी सारी क़यादत का ख्याल ये था कि हम यहाँ पे ठहरे, यहाँ से आगे ना जाएं। तो जो क्लैश हुआ है वो डी चौक में से आगे जाने की कोशिश के अंदर हुआ है और फिर उन्हें डी चौक से भी पीछे हटना पड़ा। अगर डी चौक से आगे जाते हैं तो आपके नजदीक कौन सा मकाम हो सकता है? मतलब मजीद और क्या होगा? भाई पार्लियामेंट हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की, जहां पे पहले गए थे, जहां पे पहले कब्रें खोदी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, अगर आपको याद हो, जहां पे पहले गए थे वहां तक जा सकते हैं। उससे आगे रेड जोन आ जाता है, लेकिन पीटीवी भी जा सकते, पीटीवी भी जा सकते हैं। में एक और मकाम है, आप जरा तज्जिया मुकम्मल करें। अमीर मुकाम तो नहीं है। नहीं, अनवर रज़ा के पास जाती हूँ। चले मुझे इजाजत दे, जरा अनवर रज़ा साहब को चेक कर लेते हैं। अनवर रज़ा, अडयाला जेल मकाम हो सकता है? हाँ, ये नाम बताएगा, क्योंकि कल रऊफ हसन साहब का तज्जिया, उनकी खबरें मैं सुन रही थी कल 1-2 प्रोग्राम्स में, वो बैठे भी और उनसे बारहा बात की गई और काशिफ अब्बासी साहब ने भी पूछा इस तरह अडयाला जेल हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कारकुनान की तो ख्वाहिश रही है, हमेशा से रही है, लेकिन अभी इस बारे में सोच विचार नहीं किया गया। अच्छा ज़रियाब, जरा मुझे इजाजत दीजिएगा। रजी कह रहे आप बड़ी शरारती हैं। अच्छा, रजी साहब भी ठीक वारदात करने से बाज नहीं आते। अच्छा, रही बात है, अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि अडयाला जेल की तरफ जाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी इरादा नहीं है, और ना ही कारकुनान की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर इस ख्वाहिश पर कोई आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और रही बात डी चौक की, देखिए इमरान खान साहब ने ये कहा था बुशरा बीबी को कि डी चौक तक महदूद रहना है। अब जरा समझिएगा कि डी चौक से आगे आप ये कारकुनान गे है, जहां पर एक लोहे का गेट लगा हुआ है बड़ा, उसके बिल्कुल सामने पार्लियामेंट हाउस है। डी चौक का जो आपने देखा था जहां पर कंटेनर्स पड़े हैं, कंटेनर्स के पार अगर आप जाएं तो रेड जोन जो है वो शुरू हो जाता है। फिर शाहरा दस्तूर है जहां पर ऐवान सदर है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है और बाकी तमाम सेक्रेटेरिएट और अहम बिल्डिंग्स है। अच्छा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखिए कि हुकूमत की तमाम तर कोशिशें, चलिए मैं कहता हूँ रियासती मशीनरी उस तरह इस्तेमाल नहीं की, और बहुत अच्छी बात है कि आपने नहीं की, क्योंकि ये हुकूमत सोलंकी साहब बड़ा नाराज हो रहे थे वैसे अनवर रज़ा, आप तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है नहीं की, पर सोलंकी साहब बड़े नाराज हैं। देखिए ना, मैं कहता हूँ कि ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। जरा आप ये जरा समझिएगा कि हुकूमत जो है वो कमजोर तो एक्सेप्ट की जा सकती है, ताकतवर हल्का कर सकते हैं, लेकिन रियासत को कमजोर नहीं अफोर्ड किया जा सकता, ना ये पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है। इसलिए रियासत की ये जिम्मेदारी थी कि आपने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, दोनों तरफ हमारे भाई हैं। अब आपको एक और बात बताऊं, जो पुलिस पीछे हटती थी, देखिए ये भी एक एलिमेंट है, हमें इसे भी डिस्कस करना चाहिए। उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमदर्दियां रखने वाले लोग मौजूद हैं, उनके अजीज़ व कारब मौजूद है। तो मुझे बताइए कि फिर हम दोनों तरफ पाकिस्तानी हैं, तो फिर ये अल्लाह करे कि ये हमदर्दियां बरकरार रहे। और इसी इशू को, इसी पहलू को मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगी। अनवर रज़ा, आप ही की तरफ आऊंगी। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। स्टे ट्यून्ड पब्लिक ओपिनियन। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले एक वर्ड था अनवर रज़ा साहब का, हमदर्दियाँ। उसी एलिमेंट को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। अनवर रज़ा, आप ही से अनवर रज़ा साहब ने कहा कि सिर्फ रेंजर्स और पीटीआई कारकुनान के दरमियान का रिश्ता मत देखें ज़रिया, आप पुलिस वाले और कारकुनान जो पीटीआई के, उनके दरमियान का रिश्ता भी देखें। कहीं ना कहीं शायद उनके दिलों में कोई ना कोई थोड़ा सा हमदर्दी का अंसर है, इसलिए वो भी ये चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा नरम मिजाजी के साथ मामलात को टैकल करें। लेकिन मेरा सवाल ये कि हमदर्दियां कब तक कायम रहेंगी? वो इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रेक मैं जब ट्विटर को स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने वहां पर देखा हमारे बहुत सारे सहाफ़ी ये बात बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि रात गए कोई क्रैकडाउन हो सकता है। नाउ योर ओपिनियन ऑन दिस। देखिए ज़रा, अगर गवर्नमेंट इस तरफ जाएगी कि क्रैकडाउन करेगी तो उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम और गवर्नमेंट को ज्यादा होगा। मैंने आपसे अर्ज किया था कि देखिए, हुकूमतें कमजोर तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन रियासत कमजोर नहीं की जा सकती। और ताकतवर हलकों में एक ओपिनियन ये पाया जाता है कि
जो रियासत है उसको मजबूत होना चाहिए, रियासती इदारों को मजबूत होना चाहिए। हुकूमतें तो आपको पता है, हमने देखा पाकिस्तान बनने से अब तक कमजोर ही हुकूमतें चलती आ रही हैं। और आपने जो बात की, देखिए ये इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि देखिए कि मैंने वो हमदर्दियों की बात कही ना, तो आपने देखा कई फुटेजेस भी ऐसी देखी जिसमें पुलिस वाले खुद रास्ता दे रहे हैं, फिर पुलिस वालों को जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो पानी भी पिला रहे हैं। एक फुटेज और जो मुबशर की हमने देखी कटी पहाड़ी पे, जिसपे कहा जा रहा था कि उनको पीटीआई वालों ने हलाक कर दिया, शहीद कर दिया, वो भी एक फुटेज आई सामने जब उनको जो एहतजाजी थे उन्हें पानी भी पिला रहे थे। तो देखिए ना, मुख्तलिफ आराएं, ये बात बिल्कुल अच्छा, एक और फुटेज में अभी शेयर करके आया हूं, मैंने कहा मैं वो उसका भी जिक्र कर दूं कि पीटीआई का एक जो है वो कारकुन जख्मी हुआ है और पुलिस वाला उसको अपने कंधे पे उठा के तिब्बी इमदाद के लिए लेके जा रहा है। वो भी फुटेज बहुत आम हुई है। बिल्कुल डी चौक के करीब है और ये जो रेंजर वाला है वो बिल्कुल कारकुन को लेके जा रहा है। और एक और फुटेज में जब गोली लगी है किसी एक कारकुन को, तो उस पे भी सारे कारकुनान जमा है। चले अनवर रजा, ये तो फुटेज है जिसको हमने डिस्कस कर लिया, जरा कुछ वाकयात की तरफ भी रोशनी डालते हैं। कुछ अनवर रजा कुछ इमरान याकूब साहब के पास कुछ वाकयात हैं, कुछ रिजवान अजीज साहब के पास वाकयात हैं। जाहिर सी बात है, अब इमरान याकूब साहब, अभी आपने कहा ना कि आप एक अजीज हैं, उन्हें पत्थर लगा, जख्मी हो गए, आपने सारी सिचुएशन में बताई। सर, डी चौक पहुंचना जितना बड़ा मार्का होगा या जब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, उतना ही इतने बड़े मॉब को कंट्रोल्ड रखना भी पीटीआई की ही जिम्मेदारी होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि ये सारी जिम्मेदारी तो दोनों की होती है, दोनों फ्रीक जो जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जैसे रजी साहब कह रहे थे पहले कि हुकूमत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हुकूमत को हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा करना पड़ता है, क्योंकि हुकूमत जो है उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो उस मजमे को डिस्पर्स कर दे। हुकूमत का काम अमन व मान को कायम रखना, किसी नाखुशगवार वाक़े से बचना और सारे मामलात को चलाना होता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यहाँ पे पीटीआई के जो लोग हैं, अब अगर आप वज़ीर दाखिला, मैं फिर मोहसिन नकवी साहब की बात करूँगा, उनकी गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं कि बहुत से शर पसंद लोग हैं। आपके अता तारड़ साहब भी ये कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसे दे के बुलवाया गया है, जो इस वाक़या बुलाए ही इसीलिए गए हैं कि यहाँ पे कुछ दिल पर हाथ रख के बताइए इमरान याकूब साहब, आपको लगता है कि पैसे दे के कोई मारे खाने के लिए, शल खाने के लिए आ सकता है? देखिए, अब गुजारिश सुन लें, मैं अपने दिल पे हाथ रख के फिर ये बात कहूँ, अगर मैं ये दावा कर रहा हूँ, मैं तो उन दोनों को कोट कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं। मैं आपकी ओपिनियन भी जानना चाह रही हूं। हाँ। यहाँ पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जब इस तरह वो कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इस पे कोई भी अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं इस पे अभी अपनी राय दे दूं। लेकिन असल चीज ये जो अभी आप ब्रेक में बात कर रही थी कि ये हम सारे जो है ना, क्यों सिर्फ और सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं मफरूजों पे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप कह रही थी कि जी मेरा बड़ा दिल करता है मैं वहां जाके कवरेज करूं। रिपोर्ट करती है। अब आपको आज की बात बताता हूँ, मैं जिस टीवी में काम करता हूँ जीएनएन में, उसकी डीएसएनजी थी, वहां उसके साफी थे और जीएनएन उन्होंने कहा जी आप कवरेज कर रहे थे लेकिन दिखाते नहीं। उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया, उनकी जान लेने के दर पे थे। पुलिस ने आगे बढ़ के उनको बचाया और उनको वहां महफूज मुकाम तक लेके गए। तो ये भी आप देखेंगे पूरी दुनिया चले, मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स है, मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगी। अच्छा, जब अभी हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे ना, तो रज़ी साहब मैंने एक जुमला ये भी दोहराया था कि यही मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माइक होता, हालात मुख्तलिफ होते, और अगर मैं अपने सोशल मीडिया के लिए या यूट्यूबिंग के लिए व्लॉगिंग कर रही होती तो लोगों का रिएक्शन पीटीआई कारकुनान का मुख्तलिफ होता। अब आपने जरा इन दोनों पर अपना तज्जिया दें। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मतलब कि 245 है आर्टिकल जिसके तहत फौज तलब की जाती है और फौज बुला ली गई, गोली मारने का हुक्म। अब 245 के अंदर और उसको इन्वोक करने के अंदर कहीं पे भी गोली मारने वाला प्रपोजिशन नहीं है। फौज हमेशा तनसीबात की हिफाजत के लिए आती है, वो 214 का धरना हो, वो 224 का धरना हो, दोनों जगह पे आके आप अगर अब भी निकलेंगे वहां पे तो आप देखिएगा कि फौज ने जो अहम तनसीबात हैं उनको हिफाजत में ले लिया है। वो किसी शरपसंद को गोली मारने के लिए नहीं होती, वो उससे हाथ मिलाने के लिए और ये कहने के लिए भाईजान इधर नहीं आना। और लोग उसको मानते भी हैं, लोग इज्जत भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारी फौज की इतनी इज्जत मौजूद है कि जब वहां पे कोई फौजी खड़ा हो जाता है तो जितने मर्जी दहशतगर्द हों वो पीछे हट जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए दुनिया के अंदर एक न्यू मीडिया आया है, हमने बच्चों को पढ़ाया भी है 2010 से ऑनवर्ड न्यू मीडिया आ गया। न्यू मीडिया के अंदर
की जगह उस वक्त तक नहीं बनती थी जब तक वो एग्जिस्टिंग मेन स्ट्रीम Last मीडिया minute जल्दी conclude को कीजिएगा। एग्जिस्टिंग मेन स्ट्रीम मीडिया को डिस्क्रेडिट ना करता। 15 साल लगे हैं, 14 साल उसको एग्जिस्टिंग मेन स्ट्रीम मीडिया को डिस्क्रेडिट करने के लिए। अब मेन स्ट्रीम मीडिया एक नफरत का निशान है, क्योंकि अब हर कोई जर्नलिस्ट है, हर कोई एडिटर है, हर कोई रिपोर्टर है, वो कहता है मैं ये बात कर सकता हूं, ये बात नहीं करता, इसलिए ये बददियानत आदमी है। वो ये नहीं समझता कि मुझे बात करते हुए किसी पॉलिसी के तहत बात करनी है या किसी कानून के तहत बात करनी है। लेकिन सोशल मीडिया के लिए कोई सेंसरशिप भी नहीं होता है कि आपके लिए, मेरे लिए या इमरान याकूब साहब के लिए, अनवर रज़ा के लिए बहुत से मामलात में हमें कह दिया जाता है कि ज़रा आप लोगों ने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना, कोशिश कीजिए इस मामले को ऐसे नहीं ऐसे टैकल करें। एनीवेज, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और साथ जाने से पहले मैं फिर यही कहूँगी कि अगर ये इत्तलात हैं भी कि रात को कोई क्रैकडाउन होगा तो हम तो दुआ गो हैं अपने सभी पाकिस्तानियों के लिए, फिर चाहे वो हमारे रेंजर्स एहलकार हो, हमारे पुलिस फोर्स हो, हमारे FC के लोग हों, हमारे जवान हो, या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहने वाले तमाम शहरी हों। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।